Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all today? Alhamdulillah. We're here for another program of Kids Time and lots more du'as, lots more knowledge and lots more hadith to learn today. आप सबको लास्ट प्रोग्राम याद है? जी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि हमारा ये प्रोग्राम, हमारे इस प्रोग्राम का जो पैटर्न है वो सारा वक्फ़े नौ के निसाब से लिया गया है। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी ये दुआएं याद कर सकते हैं, और अगर ये ढूंढना चाहते हैं कि हमने कहाँ से ली हैं तो ये सारी दुआएं, अहादीस और जितना भी जनरल नॉलेज है ये सारा हमने वक्फ़े नौ के सिलेबस से लिया है। ठीक है? Let's start then with the dua that we learnt last week. Who can remember the dua we learnt for last program? Barira? A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. And who can tell me the translation? Isra? I seek refuge with Allah from Satan the accursed. कौन उर्दू में बताएगा? सलमान आप बताओ। मैं पनाह मांगता दूर करे हुए शैतान से। So who can tell me the dua that we're learning today? Let's ask Hassan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. ओके, और ट्रांसलेशन कौन बताएगा? आप बताओ। All praise belongs to Allah, who provided us with food and drink and enabled us to be Muslims. और कौन इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बताएगा? इनाया आप बताओ। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। जी, जिसने हमें खाना खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। हम क्यों अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं? कौन बताएगा? हम इसलिए अल्लाह ताला हम दुआ पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको वो खाना खिलाया है, उन्होंने हमको पानी भी पिलाया है और उन्होंने हमको मुसलमान भी बनाया है। जी, आयज़ा ने बिल्कुल ठीक बताया है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, इसलिए हम सारी तारीफ़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकता है ना। अल्लाह ताला हमें खाना देता है, हमें रहने के लिए घर देता है, हम पे जब भी कोई मुश्किल आती है तो हमें उस मुश्किल से निकालता है। तो सब तारीफ़ें भी उसी के लिए होनी चाहिए ना, जिसने इस सारी कायनात को बनाया है। We're saying thank you, aren't we, to Allah that's given us all the food that we've just eaten and all the drink that we've just drunk, and Allah's made us Muslims, because Allah hasn't made everybody Muslims, has He? No, so we're very, very, very lucky, aren't we? Because we're born Muslims, or we've become Muslim, and so we know what the right path is, and we have to listen to what Allah has told us. That's why we're saying all praise belongs to Allah who's given us all these things. आपको पता है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बच्चों को खाने के लिए फूड ही नहीं मिलता, और वो बेचारे छोटी छोटी उम्रों में फौत हो जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको फूड नहीं दे सकते। और बाज़ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे फूड उगता ही नहीं है, उनकी ज़मीनों में खाना उगता ही नहीं है, किसी किस्म की अनाज, कोई सीड, कुछ भी नहीं उगता। तो आप लोग लकी हो कि नहीं हो ना, कि अल्लाह ताला आपको ये सब प्रोवाइड कर रहा है। And we have to be very grateful, because lots of people don't have lots of food to eat, or they don't have lots of nice clean water to drink, and so we have to be very, very, very grateful to Allah who's given us all these things and allowed us to be Muslims. And the way we're grateful to Allah is by saying the du'as and by listening to what Allah has told us to do. शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो कौन पढ़ेगा दरूद शरीफ? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد जज़ाकल्लाह। ओके, और आज की हदीस शुरू करें। आज की हदीस कौन सुनाएगा? सलमान, आप सुनाओगे? الجنة تحت أقدام الأمهات. जज़ाकल्लाह। और मुदस्सिर, आप इसकी ट्रांसलेशन सुनाओगे? जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। जी, जन्नत जो है माँओं के कदमों के नीचे है। And who can tell us the translation in English? Barira? Paradise is to be found at the feet of your mothers. What does that mean? If we look under our mother's feet, are we going to find paradise there? What does it mean then? Who's going to tell us? Samita? It's not we can't see it because if we listen to all our mum's rules, then we go to paradise. If we listen to everything that our mum tells us, all the good things that she tells us to do, if we listen to them, then we can get paradise from that way. Yes, Priya. Well, my mum told me that first you have to listen to your mum. That's why it's saying that paradise is under the feet of your mothers. First 3 times Holy Prophet said first is your mum, then it's your dad, because she does all the work for us and we have to thank her. That's exactly right. देखा, मामा से आप लड़ाइयाँ करते हो, है ना, उनकी बात नहीं मानते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद अम्मी सब भूल के आपको खाना देती है ना, आपका यूनिफॉर्म धोती है, तैयार करके रखती है, सब कुछ करती है ना। अम्मी कितनी अच्छी है ना, अच्छी होती है ना। आपको पता है कि एक आदमी जो था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आके कहा कि मैंने जहाद पे जाना है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसने कहा कि मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। उन्होंने कहा कि तुम वापस जाओ और जाके उनकी खिदमत करो। कुछ अरसे के बाद वो फिर आया और आके कहने लगा कि मैंने जहाद पे जाना है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? उसने कहा हाँ, मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं। उन्होंने कहा कि वापस जाओ और जाके उनकी खिदमत करो। तीसरी बार वो फिर आया और आके कहने लगा इस बार तो मैंने ज़रूर जहाद पे जाना है, मैं भी इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी जाके लोगों को इस्लाम का पैगाम देना चाहता हूँ। तो आपने कहा कि नहीं, तुम फिर वापस जाओ और जाके अपने माँ बाप की खिदमत करो। तो उसने कहा कि आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं भी इस्लाम का काम करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना भी जहाद है। देखा कि आप बूढ़े माँ बाप की खिदमत भी एक जहाद के बराबर है कि आपको उसका कितना सवाब मिलता है। इससे आपको पता चला कि माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जो हैं उनकी क्या अहमियत होती है, उनकी दुआओं की क्या वैल्यू होती है, कि हमें जन्नत का रास्ता मिल जाता है उनके ज़रिए। Our mums tell us all sorts of good things to do, don't they? They remind us when it's time to do our namaz, our salat. They remind us when it's time to read our Quran. Remind us that, and they give us our food and do all these good things for us. And we have to really, really, really be careful to make sure that we listen to our mothers and listen to what they say. And I think what Baria was telling us about was when somebody went to the Holy Prophet ﷺ and said to them, who should I listen to the most? Who should I listen to the most? And the Holy Prophet ﷺ said, your mother. And then he asked him again, and then after my mother, who should I listen to next? And the Holy Prophet ﷺ said again, your mother. And then he asked him a third time, who should I listen to after my mother? And the Holy Prophet ﷺ said, your mother again. And then after your mother, your father and other relatives. And so that shows how much importance the Holy Prophet ﷺ gave to mothers. Today we were learning about the belief in the angels of Allah. What are angels? Who can tell me what an angel is? Asra. They're things that do Allah's orders. That's right, they're spiritual beings and they do whatever Allah tells them to. Bria? Well, my mum told me they are special creations of Allah, and angels are something that
tell us what to do and usually have different jobs. That's right. फरिश्ते जो हैं वो बहुत जगह लिखा हुआ आया है कि किसी भी शक्ल में आते हैं, लेकिन बहुत सारे फरिश्ते हैं जैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो थे। आप सबको पता है कि सारा कुरान मजीद जो है वो हमारे प्यारे रसूल, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके पास उन पे नाजिल फरमाया, उन पे उतारा गया अल्लाह ताला ने। तो वो कौन लेके आया था? वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। इसके अलावा हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे, उनका ये काम था कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई जो चीज़ें हैं, जो उनकी क्रिएशन है, उसको मेंटेन रखें, ठीक है। और इसके अलावा हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जो थे उनका काम ये था कि वो क़यामत के दिन जब हम सारे दोबारा से उठाए जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो सूर फूंकेंगे। जो फ़रिश्ता है इज़राइल, वो क्या करते हैं? वो हमारे जिस्मों से आके रूह निकाल के लेके जाते हैं और फिर हम फौत हो जाते हैं। मुश्किल लगता है ना, हॉरिबल भी है ना। But चलो, it doesn't mean that Hazrat Israel alayhi salam is mean. He's just doing what Allah has commanded him to do. So once that's what happens, don't they? That's what happens after people die. There's so many different angels, and they just do whatever Allah tells them to, and they can come in all sorts of different forms. Sometimes they look like a person. Sometimes they look like an animal. Even sometimes there was a dove, the white bird that used to come to Prophet Jesus alayhi salam, and the angel came in the form of a dove. So the angels can come in any form, whatever Allah wants them to. But in some people or some different religions, some different people, they believe that angels only look in one way, don't they? They think that angels are women with wings, and people show pictures of angels that have wings, but we don't really know what angels really look like because Allah has made them, and Allah shows different people angels in different forms. And do we know about the angels that take a note of all the things that we do? Yeah, all the good things that we do and all the bad things that we do. The angels write down everything, or they note down everything that we do, so that we can be punished for the naughty things that we do, and we can be praised and we can get good things for the good things we do. बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं और जो वो अदा करते हैं, ठीक है। और बरीरा, आपका कोई क्वेश्चन? My question was that if we do something bad and we say to Allah we're really sorry, do they still note it and do we still get punished? Well, the angels will note down everything that we do, but remember we talked last time about Ar-Rahim, didn't we? We said the most merciful. So the angel's job is just to note it down, and it's Allah who will forgive us or not forgive us for the things that we do when we ask for Allah's forgiveness. But the angel's not the person that's going to forgive us. The angel's not the big being that's going to forgive us. The angel just notes down everything that we do, and it's up to Allah. जी आयज़ा, Can angels only come to prophets or can they come to random people as well? they can come to random people. They can come to anyone. Yeah. Okay, sure. How did Shaitan turn into Shaitan when he was meant to be an angel? Shaitan was never an angel because angels can only do what Allah tells them to. Shaitan was a different being that was created by Allah. So, like when we are doing something, we can choose, can't we, whether we want to do something good and whether we want to do something bad. Angels can't choose. They just do what Allah tells them to. But Shaitan was a different being, and Shaitan had the power to decide whether he wanted to listen to Allah or whether he wanted to do something wrong. And Shaitan decided that he wanted to do the wrong thing. So Shaitan wasn't an angel. सारी मखलूक को बनाया था, सारी कायनात को बनाया था, तो शैतान वो था जिसने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार किया था और उसने कहा था कि वो कभी भी उनका कहना नहीं मानेगा और सिर्फ अल्लाह ताला का कहना भी नहीं मानेगा, बल्कि जो लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला का कहना मानते हैं और अपने इस्लाम के मुताबिक चलते हैं, उनको भी उनके रास्ते से हटाएगा। जब आप नॉटी थिंग्स करते हैं, आप कोई बुरा काम करते हैं, तो कौन आपको ऐसा करने पे मजबूर करता है?
शैतान करता है ना कि ओके थोड़ा सा और सो लो, नमाज नहीं पढ़ो, है ना, बिस्मिल्लाह पढ़े बिना खाना खा लो और हाथ भी नहीं धो, और स्कूल से जब आप भागे भागे आते हो और आके कहते हो कि मैं जल्दी से खाना खा लूँ, और आप डर्टी हाथों के साथ खाना खाते हो, तो क्या होता है, गुनाह भी मिलता है और बहुत सारे जर्म्स भी आपकी बैली में चले जाते हैं, है ना। और फिर कौन खांसता है सबसे ज़्यादा? सारे के बच्चे, है ना। तो देखा शैतान कितना कुछ कर देता है। तो शैतान की बात माननी चाहिए? नहीं माननी चाहिए ना। जो अल्लाह ताला ने इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे लिए बनाए हैं, इतने अच्छे अच्छे फरिश्ते हमारे लिए बनाए हैं जो हमारी सारी अच्छी बातें नोट कर रहे हैं, तो कितने लोग हमारे साथ होते हैं, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, अल्लाह ताला की बात माननी चाहिए, है ना। ओके आज आपको पता है शाजिया, लास्ट प्रोग्राम में जब हमने बच्चों को कुछ बनाना सिखाया था, तो आज बच्चे बहुत कुछ बना के लेकर आए हैं। कौन दिखाएगा सबसे पहले? ओके लेट्स स्टार्ट विद स्मिता। स्मिता क्या लाई है बनाकर? स्मिता इल्हाम लिख कर लेके आई है, इन्नी माँ का या मसरूर। अच्छा है, वाह, रियली कलरफुल। Isa, what did you do? I made 3 flowers and I hanged them on a string. Wow, that looks nice. Did you do it all by yourself? Yeah. Did you? All by yourself? Yes. Wow, well done. And what else did you make? And I made a small girl about to eat and with the dua. Oh, and with the dua and the translation. That's good. अब और कौन दिखाएगा? बरीरा। Was it hard? Were they hard to make or were they easy? The first one was quite hard. And then after you knew how to do it, then it became a bit easier. And I also made a little blue one. That was my best. And that was your best. We can see it's really best. Okay, what's the And next? also I made this big vase, and it was for my Nasrat homework, and I made it all by myself, but my mum just helped me stick the stuff on. Was that was for your Nasrat class? Yeah. That looks nice. माशाल्लाह कितने क्रिएटिव बच्चे हैं ना। And I also made भैया ने तो बहुत सारा काम किया है, माशाल्लाह। And I also made like a poster. I also made a poster how to behave in the mosque when you open these. And there's steps to you open them and there's steps. What to do first. बिल्कुल, आप सब भी ऐसे चार्ट्स बनाकर जो है अपने रूम में लगा सकते हैं ताकि आपको ये सब याद करने में आसानी हो, है ना। कितना अच्छा आइडिया दिया है बरीरा ने सबको। और इस तरह आप क्या बना के लाए हो? मैं 3 फूल बनाए और मैंने एक सदका का बॉक्स भी बनाया है। सदके का बॉक्स बनाया है। आपको याद है लास्ट टाइम भी हमने कहा था सदका बहुत सारी सूरतों में हो सकता है। जो आप मनी देते हो अल्लाह ताला के नाम के ऊपर, वो भी सदका है। जो आप आगे किसी को पढ़ाते हो वो सदका जारिया है। तो उसने इसरा ने ये बात याद रखी और इसरा मनी बॉक्स लेके आई है। वो चीज़ जो हम खुदा ताला के नाम के ऊपर देते हैं वो क्या कहलाती है? वो सदका कहलाती है। और कौन बना के लेके आया? मुदस्सिर कुछ बना के लेके आया है, और मुदस्सिर सबसे ज़्यादा हाथ खड़ा कर रहा है दिखाने के लिए। मैंने स्कूल में एक पिलो बनाया और ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हमने इसको अभी स्टफ़ किया है। वाह, इस पे सो सकते हैं? हाँ जी, अभी बना ख़त्म नहीं हुआ, तो जब ख़त्म हो जाएगा तब सोया करूँगा। जब ख़त्म हो जाएगा तब सोया करोगे? इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बनाया। देखा, बॉयज़ भी ये सारे काम कर सकते हैं। आज हम कुछ फूल और बनाएं, कुछ और प्रैक्टिस करें। चलो, आज हम आपको सिखा रहे हैं कागज़ के फूल बनाना। हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें सिखाई थी, क्योंकि ये चीज़ें आप आसानी से आपकी उम्र के बच्चों के लिए जो है वो मिल जाती हैं बाज़ार से, और हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है कि आपको जो है इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता और आप बहुत सारी डेकोरेशन बना सकते हो।
ये कुछ टिश्यू पेपर्स हैं जो मार्केट से मिलते हैं और आराम से मिल जाते हैं और बहुत सस्ते मिल जाते हैं। ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इनसे फूल बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। आप ये पेपर लो। वैसे ये फूल जो हैं वो ज़्यादातर लोग कपड़े से बनाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो है स्कूल का काम करने के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़े से ही बनाओ, लेकिन कपड़े के फूल भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हें पेपर से बनाएं। इसका साइज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइज़ के फूल बनाना चाहते हैं, ठीक है। मैंने ये एक पेपर लिया और इसके ऊपर मैं कुछ सर्कल्स ड्रॉ करूँगी, ठीक है। और उन सर्कल्स को ऐसे उसके ऊपर सर्कल्स बना के और मैं इन्हें काट लूँगी, ठीक है। ये बनाना बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हैं और आप गिफ्ट बैग्स के ऊपर बना सकते हैं। आप इसके साथ कोई फ्लोरल अरेंजमेंट बना सकते हैं। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है बनाना। पहले वाला बनाना मुश्किल था, आसान था ना? आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत एग्जैक्ट सर्कल्स ही बनाओ। ऐसे हमने सर्कल्स बना लिए हैं, ठीक है। इन सर्कल्स को ऐसे फोल्ड करके और फिर इसको दोबारा ऐसे फोल्ड करके, राइट, और इसको ऐसे इसके कॉर्नर से ऐसे फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करके अब इसको स्टेप अप करते हैं, राइट। सो ये आपके पास एक पेटल बन गई है। ऐसे ही हम 5 पेटल्स बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर ये लोग जो है ये फूल निडल के साथ बनाते हैं, लेकिन हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चों के लिए ये काम करना ज़्यादा आसान है निस्बत सुई के साथ काम करने की। ये आसानी से भी बन जाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। किस किस को आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लगता है अतियाबाजी के अलावा? I find it really hard. राइट, हमने ऐसी 5 पेटल्स बना लिए हैं, ठीक है। अब हम इनको कोई भी आप डबल टेप लेके उसके ऊपर आप ये लगा सकते हैं और आप इनको इकट्ठे से स्टेपल भी कर सकते हैं। ऐसी डबल टेप मिलती है, उसके ऊपर भी लगा सकते हैं और आप स्टेपल भी कर सकते हैं। हमारे पास एक फूल बन गया, ठीक है। और इसके ऊपर आप डिफरेंट तरह के ऐसे बटन्स या कुछ भी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। आसान है ना? जी बरीरा, वो फूल के पीछे जो डबल साइडेड टेप है वो स्टिक हो सकती है टेप में? वो स्टिक भी हो सकती है। आप कोई भी पेपर लेके उसके ऊपर ग्लू लगा के और आप पीछे वो स्टिक कर सकते हो, ठीक है।
आप वो भी कर सकते हो और इन पेटल्स को स्टेपल के साथ भी जोड़ सकते हो। इस तरह के मैंने बहुत सारे फूल आप लोगों के लिए बनाए हैं। देखो ये देखो, आप इनके साथ आप इनको पेपर पाइप के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये जो पाइप क्लीनर्स हैं, ऐसे पाइप क्लीनर्स के साथ आप ये सारा कुछ ऐसे बना सकते हैं। डिफरेंट फूल, ये सारे मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। राइट, अच्छे हैं? और ये है हमारी आज की अरेंजमेंट। अच्छी है जी। 10 से एक पीस ऑफ टिश्यू पेपर, उसको कितनी दफ़ा फोल्ड करना है? एक पेपर है, उसको 3 दफ़ा फोल्ड करना है। ओके। ये देखो, एक राउंड पेपर है, एक दफ़ा, राइट, उसको ऐसे एक 2 दफ़ा फोल्ड, एक दफ़ा हो गया, और फिर उसको ऐसे दोबारा से फोल्ड कर देना है। तो आपका टॉप ये होगा और नीचे से आप इसको ऐसे फोल्ड करते जाओगे। ये देखो, ठीक है, आसान था ना? अच्छा है। चलो, आज का हमारा ये आर्ट एंड क्राफ्ट का सेक्शन था। जाज़ाकल्लाह बहुत बहुत। That's the end of our programme for today. Inshallah, we'll all be trying to make the beautiful flowers that Atya Baji made today and remembering our du'as, and inshallah we'll see you again soon. आज के प्रोग्राम में हमने सीखी हदीस, दुआ और हमारा फेथ क्या है, हमारे बिलीफ क्या है और हम क्यों मुसलमान हैं। ठीक है, वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kidstime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है Kids Time, MTA International 16 Crescent Hall Road। हमारा पोस्ट कोड है SW18 5QL लंदन UK। इसके अलावा अगर आप ये प्रोग्राम MTA पर देखना भूल गए हैं तो आप किसी भी वक्त ये प्रोग्राम YouTube के ऊपर जाके देख सकते हैं। आप YouTube ओपन कीजिए और उसके ऊपर जाके लिखिए किड्स टाइम MTA ऑनलाइन 1 किड्स टाइम। इस सबक के साथ कि आप लोग अगली दफ़ा भी जो है वो इसी मेहनत के साथ आएंगे, इसी जज्बे के साथ आएंगे और उन सारे बच्चों को भी सिखाएंगे ये सारी दुआएं, अहादीस जो हमें MTA पर देख रहे हैं, जो सारी दुनिया से हमारे साथ हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।